Good morning, everybody. To commemorate the 75th anniversary of Indian independence, our nation is celebrating Azadi ka AMRIT Mahotsav. On this monumental occasion, we are not only rejoicing our hard-earned independence, but also paying tribute to the freedom fighters who sacrificed their lives for the nation. Today, we are conducting virtual morning assembly under Azadi ka AMRIT Mahotsav. In this context, I would like to invite Ms. Astha of class 7th A to present a poem. नमस्कार, मेरा नाम आस्था और मैं केवी बाद मथुरा कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आप सबके सामने कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है सत्य अहिंसा के दम से। अहिंसा की लाठी थाम आजादी की रफ्त मांग, बापू तूने अंग्रेजों की जड़ें यूं हिलाई थी। वक्त था बड़ा गंभीर, ना पकड़ी तूने शमशीर, तेरी एक हुकार पर जनता दौड़ी आई थी। उस बापू को नमन मेरा, गांधी चमन तेरा, सीधी सीधी चाल चल बड़ा कमाल कर दिया। टेढ़ी टेढ़ी चाल वाली अंग्रेजी हुकूमत को सत्य अहिंसा के दम से बेहाल कर दिया। गोरों की देखी करतूत, भारत के सच्चे सपूत, अंग्रेजों के ध्वज की होली जलाई थी। शक्तिशाली निर्भय मन, बोला दुबला पतला मुंह, अंग्रेजों भारत छोड़ो लगी तो पे कपकपाई थी। राष्ट्रपिता तुझे प्रणाम, हिंदुस्तान की तू पहचान, तूने अपने कर्मों से सबको निहाल कर दिया। टेढ़ी टेढ़ी चाल वाली अंग्रेजी हुकूमत को सत्य अहिंसा के दम से बेहाल कर दिया। धन्यवाद। Thank you, Astha, for the wonderful poem. Now I call upon Ms. Kritika of class 8B to present a speech. Today I present a speech on a famous freedom fighter, Subhash Chandra Bose. Netaji Subhash Chandra Bose was a great freedom fighter whose patriotism made him a hero in India. He was popularly known as Netaji because of his hard work and great leadership. He was born on 23rd January 1897 in Cuttack, Orissa. His father's name was Janki Nath Bose, who was a lawyer, and his mother's name was Prabhavati Bose. He was a very intelligent student. He took admission in Presidency College in Kolkata, and then he took admission in Scottish Church College and passed his BA in 1918 in philosophy. Netaji became Congress president in 1938 but resigned in 1939 because of some differences with Congress policy. He raised Indian National Army Azad Hind Fauj to make India free from the British rules. His famous quote was, "You give me blood, I will give you freedom." The Britishers put Subhash Chandra Bose in house arrest because of his opposition against Britishers. Subhash Chandra Bose was a strong believer in Bhagavad Gita. Netaji died in a plane accident on 18th August 1945, but his dead body is not found. His hard work still inspires to millions of Indians. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. Thank you, Kritika, for a very informative speech. Now, I'm inviting a beautiful song by Master Gandhar of class 10A. नमस्कार, मैं गंधर्व कुमार सिंह कक्षा 10वीं केंद्रीय विद्यालय बाद मथुरा का छात्र आज आप सबके समक्ष एक देशभक्ति गीत लेकर प्रस्तुत हूँ। देशवासियों, देश प्रेमियों, देश की दशा पे ध्यान दो। देशवासियों, देश प्रेमियों, देश की दशा पे ध्यान दो। राष्ट्र की अखंडता खंड हो रही, राष्ट्रीय एकता का दान दो। राष्ट्र का दान दो। बोलो वंदे मातरम,
वंदे मातरम, वंदे मातरम। भगत सुभाष शहीदों की याद में चले देश अभी एकता के अभियान में। भगत सुभाष शहीदों की याद में चले देश अभी एकता के अभियान में। यही महामंत्र वंदे मातरम की ध्वनि गूंजे आसमान में। बोलो वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद। Thank you, Gandharv, for a very lovely song. Now at last, Riya Shukla of class 9B is going to present a talk. नमस्कार, मैं रिया शुक्ला कक्षा 9वीं बाग केंद्रीय विद्यालय बाद मथुरा की छात्रा हूँ। आज आजादी के अमृत महोत्सव पर महात्मा गांधी जी के स्वतंत्रता संग्राम में दिए गए योगदान पर अपने विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। गांधी जी ने भारत को आजादी दिलाने के लिए अनेक आंदोलन चलाए थे। मैं उन आंदोलन का उल्लेख कुछ इस प्रकार कर रही हूँ। महात्मा गांधी जी ने सन 1917 में चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किया, जो नील की खेती करने वाले किसानों के समर्थन में था। इसके पश्चात सन 1918 में महात्मा गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा में आंदोलन किया था। महात्मा गांधी जी ने सन 1920 से लेकर 1922 तक असहयोग आंदोलन का संचालन किया, जिससे वे पूरे देश में के लोकप्रिय नेता बन गए थे। इसके पश्चात महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। इसका अर्थ था कि बगैर हिंसा किए सरकारी कानूनों का उल्लंघन करना। इसकी शुरुआत नमक कानून का उल्लंघन करके किया गया था। सन 1942 में महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसमें महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। महात्मा गांधी जी के अथक प्रयासों से ही हमारा देश 15 अगस्त 1947 में अंग्रेजों से आजाद हो गया था। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Now I'm concluding this program with Vande Mataram. Vande मातरम। Vande मातरम। Vande. मातरम। Thank you, everyone. Mataram.